اس ملک میں عوامی حاکمیت کو جو ہے وہ لانے کے لیے اور عوام کے حق حاکمیت کو جو ہے وہ انشور کرنے کے لیے فری اور فیئر الیکشن ضروری ہے، جس میں کسی قسم کی جو ہے وہ غیر سیاسی مداخلت جو ہے وہ کسی جانب سے بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اس جدوجہد میں تمام پارٹیز جو ہیں وہ یکسو ہیں، بھلے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے کریں یا علیحدہ اپنے پلیٹ فارم سے کریں۔ تو اس لیے ہمیں یہ امید ہے اور یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس جدوجہد میں باقی اپوزیشن جماعتوں کا یا پی ڈی ایم کا جو ہے وہ ساتھ دے گی، بھلے وہ اپنے پلیٹ فارم سے دے یا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے۔ اچھا رانا صاحب، وزیر اعظم عمران خان کو ڈسکا الیکشن پر رپورٹ کہا جا رہا ہے کہ پیش ہوئی ہے، اور جس میں یہ بتایا گیا ہے چونکہ تحریک لبیک پاکستان نے اپنے 20,000 ووٹ جو ہیں وہ نون لیگ کو پیسے لے کر دیے، اس وجہ سے ان کا کینڈیڈیٹ ہارا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں۔ تو آپ نے واقعی تحریک لبیک کے ووٹ خریدے ہیں یا کیا؟ ان کے پاس سوائے جھوٹ کے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اب بخلا چکے ہیں، کیونکہ ان کا احتساب کا اور کرپشن کا جو منترا تھا، جو بیانیہ تھا، وہ اب پٹ چکا ہے۔ اب اس کے اوپر کسی کو یقین نہیں ہے۔ انہیں شرم آنی چاہیے کہ 3 سال کے بدترین گھٹیا انتقام کے بعد یہ کہتے تھے ہم 3,000 ارب روپیہ ریکور کریں گے۔ وہ کدھر ہے 3,000 ارب روپیہ جو انہوں نے جو ہے وہ ریکور کرنا تھا؟ ایک دھیلا جو ہے یہ ریکور نہیں کر سکے، اور ایک دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ کسی پی ایم ایل این کے لیڈر بشمول میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف یہ ثابت نہیں کر سکے، اور اب یہ اس قسم کے جھوٹے دلاسوں سے جو ہے وہ اپنے لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لبیک کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ اس الیکشن میں موجود تھا، اور اگر میں جو ہے وہ بھول نہیں رہا تو میرا خیال ہے کہ 8,200 ووٹ اس کو پڑے ہیں۔ تو جب ایک کینڈیڈیٹ میدان میں موجود ہے تو پھر اس کے ووٹ ہمیں جو ہے وہ کیسے پڑ سکتے تھے؟ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز نے نہ صرف میاں نواز شریف کے بیانیے کو ووٹ دیا ہے بلکہ اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کی ہے، اور یہی ماڈل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے پنجاب، پورے پاکستان میں دہرایا جائے گا، اور نہ صرف ووٹ کو عزت دی جائے گی بلکہ ووٹ کی حرمت کی حفاظت بھی کی جائے گی۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو تحریک لبیک پہ پابندی لگائی ہے، قلعدم قرار دیا ہے، اور جس طریقے سے ان سے نفرت زما حکومت ہوئی ہے، کیا درست اقدام تھا، یہی ہونا چاہیے تھا یا کوئی اور لائے عمل اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، کسی بھی وائلنس کو کہ آپ روڈز کو بلاک کریں اس طرح سے کہ عوام جو ہیں، عوام کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، مریض جو ہے وہ ایمبولینسوں میں جو ہے وہ مرے، اور لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ رولیں، ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو طریقہ کار ہے یہ کس نے ایجاد کیا تھا؟ کون کنٹینر پہ چڑھ کے کہہ رہا تھا کہ میں 4 تاریخ کو لاہور جاؤں گا، لاہور بند کروں گا، 8 تاریخ کو میں جو ہے وہ فیصل آباد جاؤں گا، فیصل آباد بند کروں گا، پھر میں 16 تاریخ کو پورا پاکستان بند کروں گا؟ یہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا؟ یہ قابل مذمت ہے، اور جب یہ روش اختیار کی گئی تو اب جو سعد رضوی صاحب ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان بند کر کے، یہ روڈز بند کر کے، یہ گراؤ جلاؤ کر کے وزیر اعظم بن گیا تو میں بھی وزیر اعظم بن سکتا ہوں۔ تو اب جو ہے وہ پھر سعد رضوی صاحب کو جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ آگے وزیر اعظم جو ہے وہ بننا چاہیے، ان کی بھی سلیکشن ہونی چاہیے۔ انہوں نے بھی ایک 2-3 دن ملک کو بند کر کے ایک اچھا انہوں نے جو ہے وہ اپنا ٹرائل جو ہے وہ دیا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بھی اس بات کی مذمت کرتی تھی جب کہ یہ سارا کچھ اس کے خلاف ہو رہا تھا۔ لیکن ہم آج بھی اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت اگر اس عمل کی حمایت کرتی اور حکومت کی مخالفت کرتی تو یہ پنڈی کے شیطان کو جو ہے نا، اس کو بات کرنی نہیں آنی تھی، اس کی سانس پھول جانی تھی۔ لیکن اپوزیشن نے ایک ذمہ دارانہ رویہ اپنایا، لیکن ان بے شرموں کو
اتنی توفीक नहीं हुई कि इसके ऊपर अपोजिशन को एतमाद में लें या अपोजिशन का कम से कम जो है वो नाम लेते या शुक्रिया अदा करते। अच्छा राना तो साहब, ये ज़िम्मेदाराना जो अपोजिशन का रवैया है उस वजह से ये मुमकिन हुआ है। हम इस किस्म की वायलेशन को 2017 में भी गलत समझते थे, 2018 में भी गलत समझते थे, ये 2014 में भी गलत थी और 2021 में भी गलत थी। राना साहब ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपकी राहें मुकम्मल तौर पर जुदा हो गई हैं या अभी कोई गुंजाइश बाकी है कि जहांगीर खान तरीन भी अपने पत्ते जो हैं वो शो करवाते जा रहे हैं? किसी किस्म की कोई इन हाउस तब्दीली अगर मुमकिन हो जमहूरी तरीके से तो क्या इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या ANP या दूसरी जमातें, जो भी सियासी जमातें हैं, एक सियासी रवादारी, एक सियासी इज़्ज़त एहतराम का जो है वो दर्जा सियासी जमातों के दरमियान मौजूद रहना चाहिए। कल पीपल्स पार्टी हमारे साथ एक मामले पे, 2 मामलों पे मुत्फिक थी। अगर आज किसी मामले पे अगर अदम इत्तफाक हो गया है तो आने वाले कल जो है वो उसमें दोबारा जो है वो इत्तफाक हो सकता है। इसलिए हम ये बिल्कुल ये नहीं कहते कि हमारा जो है वो किसी दूसरी सियासी जमात से कोई ऐसा इख्तलाफ है कि हम उनके साथ बात नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को एक दूसरे का और एक दूसरी लीडरशिप का जो है एहतराम करना चाहिए। ये सिर्फ़ एक सिलेक्टेड टोला ही है जिसको किसी का एहतराम नहीं है, जिसको जो है वो सियासी रवादारी का जो है वो भी एहसास नहीं है। और ये जो चीज़ है ये मुल्क के लिए, सियासत के लिए, जमहूरियत के लिए जो है ये बहुत ही जो है वो डैमेजिंग है। सियासी जमातों को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। हमें पीपल्स पार्टी का एहतराम है। हाँ, जिस बात पे हमें इख्तलाफ है उसका हम बरमला जो है वो इजहार करेंगे। लास्ट में बताइएगा कि आप समझते हैं जो सिलेक्ट करते हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी की सिलेक्शन कर चुके हैं, इसीलिए पीपल्स पार्टी के केस भी माफ़ हो रहे हैं, जरदारी साहब को भी रिलीफ मिल रहा है, इस खुशी में है कि बिलावल खुश हैं कि मेरी सिलेक्शन हो चुकी है? देखिए, हम तो सिलेक्शन के ख़िलाफ़ हैं। सिलेक्शन कोई भी करवाए, किसी की भी हो, तो जब हम इनके ख़िलाफ़ हैं तो फिर हम आइंदा भी जो है वो सिलेक्शन के अमल के ख़िलाफ़ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये सिलेक्शन का अमल होना नहीं चाहिए। आवाम को जो है वो अपना हक़ राय दही देने का और अपने वोट की इज़्ज़त का, एहतराम का जो है वो हक़ मिलना चाहिए। ये सिलेक्शन का अमल जब तक जारी रहेगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुल्क इसी गोल दायरे में जो है वो सफ़र करता रहेगा। ये सिलेक्शन का अमल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की यही जदोजहद है और मियाँ नवाज शरीफ का जो बयानिया है, दरअसल वो बयानिया यही है। आप ये देखें कि आज तहरीक लब्बैक के जिस अमल की जो है वो पूरी कौम को जो है वो सामना करना पड़ा है, आप मुझे बताएं कि इसका आगाज़ कहाँ से हुआ था? NA 120 से। सिर्फ एक हलका जीतने के लिए जो है इस अमल का आगाज़ हुआ था और अब आप देखें कि कौम को कितना महंगा पड़ा है। तो हम इस अमल के जो है वो ख़िलाफ़ हैं। हाँ, अगर कोई मजहबी जमात है तो अगर वो सियासी तौर पे अपने आप को मुतहर्रिक करना चाहती है तो वेलकम, लेकिन ये सिलेक्शन का अमल जो है और पार्टियों को तोड़ने का और वोट तोड़ने का, अब मेरे मुकाबले में मेरे हलके में 13 मौलवी साहबान खड़े किए हुए थे। अब वो मौलवी साहबान जो हैं वो किसी के कहने पे खड़े हुए थे, उनको बाकायदा पैसे मिले थे कि चलो हर मौलवी जो है वो 100, 200, 300, 500 वोट तोड़ेगा, तो वो कम से कम उन्होंने जो है वो 16-17 हज़ार वोट उन्होंने तोड़ा। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो अमल है, अब ये एक्सपोज हो चुका है। अब हर किसी को समझ आ चुका है कि ये कौन करता है, क्यों करता है और क्यों किया जाता है। ये अमल जो है ये बंद होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए, फिर ही मुल्क आगे बढ़ेगा। अगर ये अमल जारी रहेगा तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिएगा। वज़ारतें तब्दील करते हुए जिस तरह ये हुकूमत कर रही है, अब शौकत तरीन को जो है मशीर ख़जाना लगा दिया गया है, क्या ये 5 साल इस तरह पूरे कर लेगी और सदारती निज़ाम की तरफ कोई जा रही है चीज़, आप ये देख रहे हैं? देखें, ये कितना अरसा जो है ये रहते हैं या पूरा करते हैं या पूरा नहीं करते, लेकिन इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। जिस मुल्क का 6-6 महीने के लिए
वज़ीर ख़जाना होगा, आप मुझे बताएं कि उस मुल्क का क्या हाल हो। ये मुल्क की जो मौशियत की तबाही है, इकॉनमी की जो तबाही है, उसका ज़िम्मेदार ये सिलेक्टेड टोला है। आप मुझे बताएं कि इन्होंने दोबारा जो है वो 6 माह के एडहॉक वज़ीर ख़जाना को लगा दी है, तो ये मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। आज की दुनिया में कोई मुल्क जो है वो इकॉनमी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। आज सारा कुछ जो है फतूहात भी और ग़ुलामी भी, आज़ादी भी, सारी चीज़ें जो हैं वो इकॉनमी से मुंसलिक हैं, और इस मुल्क की इकॉनमी का इन्होंने पिछले 3 साल में बेड़ा गर्क कर दिया है। 5.8 की जो ग्रोथ थी वो 1.5 पे ले आए हैं, और हाल ये है कि 6-6 महीने का जो है ये अपना जो है एडहॉक वज़ीर ख़जाना जो है वो चल रहा है। लास्ट तो में ये तबाही है इस मुल्क आपकी की। बात से एक बात याद आ गई, ये जो मजहबी जमातें हैं, जिस तरह हाफिज़ साहब की आपने बात की, जिस तरह तहरीक की इस हुकूमत ने ठुकाई की है, मजहबी जमातों को क्या पैगाम देंगे कि जो इस्तेमाल हो जाती हैं जत्थे की सूरत? देखिए, मैं तो जो यही सेलेक्ट पैगाम दूंगा, साद रिजवी साहब से भी मैं पैगाम उनको भी यही दूंगा कि आपने गलत रास्ता इख्तियार किया। ये एक आदमी का गिराओ जलाओ मुल्क बंद करके दाव लग गया था, ये दाव अब रोज़ रोज़ नहीं लग रहा। इसलिए आपने अगर सियासत करनी है तो जो एक मारूफ तरीका है, जो इस मुल्क का आइन है, इस मुल्क का कानून है, जो जमहूरी तरीका है, उसके मुताबिक जो है वो आप आएँ। और आपने ये जो इसकी पैरवी की है सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म साहब की, ये मैं समझता हूँ कि ये पैरवी दुरुस्त नहीं थी। आपने हमें भी बड़ा तंग किया, बड़ा ख़राब किया, पूरे मुल्क को ख़राब किया, उस वक्त भी किया, आज भी जो है वो आपने जो है वो मैं समझता हूँ कि गलत सोच की बुनियाद के ऊपर जो है ऐसा किया है। और मेरी तो दुआ है कि उन्हें जो है वो सही समझ आए और वो सही रास्ते पे दीन की खिदमत करें और मुल्क की जो है वो खिदमत करें। बहुत शुक्रिया।